اقتدار کا بالکل نہ ہونا تو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. کوئی کہے بھی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آ جاتا ہے. نیشنل سیکیورٹی میں پھر فوڈ اینڈ سپلائز کا ایشو آ جاتا ہے, آئل امپورٹس کا ایشو آ جاتا ہے. سو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں وہ فوج سمجھتی ہے کہ اس کا اپنی دلچسپی ہے اور اس کا سٹیک ہے. تیل ہی نہیں ہوگا تو ٹینک ہی نہیں چلے گا, جہاز ہی نہیں چلے گا, وہ یہ کہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کبھی بھی یہ ہوگا کہ وہ بالکل ہی کٹ آف ہو جائے. لیکن باجوہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا. اب جب جا رہے ہیں تو پھر وہ کہتے جا رہے ہیں کہ جی فوج کسی میں سیاست میں حصہ نہیں لے گی اور یہ ہم نے فیصلہ کر لیا. اور کہتے ہیں فروری 2021 میں فیصلہ کیا. اس کے بعد سارا بتاتے ہیں کہ ایک فریق نے ان کے ساتھ کیا کیا, دوسرے نے کیا کیا, کس طرح وہ انہوں نے اپنی تبدیلی کی, اور ساری تقریر سیاسی کی. کہتے ہیں سیاست نہیں کریں گے, اور ساری تقریر سیاسی تھی. تو جب ان کا پہ اس بات پہ اعتماد نہ آدمی کر سکے کہ سیاست سے کنارہ کشی کی تقریر جو ہے وہ بھی ساری سیاسی ہے, تو باجوہ صاحب اب میرا خیال ہے آرام کی اور آسائش کی زندگی گزارنے کے قابل ہیں. بڑی خدمت کر لی انہوں نے فوج کی, اور اب وہ اسی مقام پہ اب آرام کریں. اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, تو اس کا حل کیا ہے کہ فوری طور پہ الیکشن ہو جانے چاہیے, اسی سے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی. اچھا اعتزاز صاحب اسی میں ایڈ کر لیجیے, آصف زرداری نے چودھری شجاع صاحب سے ملاقات کی اور پرویز الہی کو کہا ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے تو وہ جو ہیں اسمبلیاں تحلیل نہ کروائیں. جی جہاں تک تو تعلق کیا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا, یہ کلی طور پہ اختیار ہے اور ایک ڈسکریشن ہے, ثوابدید ہے وزیر اعظم کی اور وزرائے اعلیٰ کی. پرویز الہی اگر کل کرنا چاہتے ہیں ڈیزالو پنجاب کی اسمبلی تو ان کو پورا کلی اختیار ہے آئین کے تحت, اور شہباز شریف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اختیار ہے. سندھ کے مراد علی شاہ کرنا چاہتے ہیں, یہ اختیار چیف منسٹرز کا اور پرائم منسٹر کا ہے, اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ پرویز الہی صاحب کو آصف زرداری صاحب نے فون کیا ہے اور کہا ہے کہ چیف منسٹر آصف زرداری سب سے اس وقت میں سمجھتا ہوں ذہین پلیئر ہے گیم کا, اور اس نے انہوں نے دیکھے آپ کہ کس طرح یہ گیم کھیلی ہے کہ پارٹیوں کو اکٹھا کرنا, یہ ایک بڑا کمال تھا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھی ہو, جماعت جواہی وہ بھی ساتھ ہو, بلوچستان کی چھوٹی پارٹیاں بھی ہوں, اے این پی بھی ہو. یہ کام آصف زرداری کا ہی تھا اور کسی کے لیے آسانی سے ممکن نہیں تھا. اب وہ نوابزادہ نصر اللہ نہیں ہے کوئی, تو یہ اچھی موو ہے آصف زرداری کی طرف سے. اس کا کیا بنتا ہے, پرویز الہی اس کو منظور کرتے ہیں یا نہیں, یہ تو پرویز الہی بتا سکتے ہیں. الیکشن ہو جانے چاہیے.
इलेक्शन तो ये तो आपको मैंने कहा ना स्वाबदीदा प्राइम मिनिस्टर की, ये भी ओपिनियन है जल्दी हो जाने चाहिए, ये भी ओपिनियन है जल्दी नहीं हो जाने चाहिए। इमरान खान जल्दी करा के करेगा क्या? फिर वो सारा बोझ उस पे आ जाएगा जब अगली इलेक्शन आएगी अक्टूबर में 2 सूबों और वफाक की, तो फिर जो बदनज़मी ये इसमें मईशत बहाल नहीं हो सकती। सर, आर्मी की हाईकमान में तब्दीली के बाद आप क्या मशवरा देंगे खान साहब को? अब वो बयानबाजी कुछ अरसे के लिए रोक देनी चाहिए जैसे वो कुछ अरसे से करते आ रहे हैं? मैं खान साहब को मशवरा देने वाला मैं नहीं हूँ। खान साहब के अपने बड़े मशीर हैं, बड़े जीरक लोग हैं। खान साहब समझ ही गए होंगे कि अपने ही वर्कर और करिंदों को, अपने ही फॉलोअर्स को थका थका के उन्होंने काफ़ी उनसे खराज लिया है, तो बेहतर तो उनके लिए है थोड़ी देर रेस्ट दें अपने पार्टी वालों को। अच्छा शहजाद साहब, अभी आपने जिस तरह से कहा कि उठा तक आगे कर चुके हैं, इमरान खान को पूरा अरेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि सब यह तहरीर हो जाएगी, और आप भी उनके बयान देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, वो देते तो ज़रूर हैं लेकिन उस तरह से अमल दिखाई नहीं देता। ऊपर से नवाज शरीफ साहब ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जी मैं भी जल्द आ रहा हूँ, इंतखाबात की तैयारी करें। आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तो है खान की तरफ से जो आपने कहा कि वो बयान देते हैं और उससे हट जाते हैं, ये तो बहुत मरतबा हो चुका है और अब भी उनको एहसास ये हो रहा है मेरे ख्याल में कि अगर असम्बलियाँ तहलील करनी थी तो पहले जिस दिन ऐलान किया था असम्बलियों को तहलील करने का, परवेज इलाही से भी मशवरा हो चुका होता, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ भी, महमूद खान के साथ भी हो गया होता और ये असम्बलियाँ तहलील हो जाती उसी रोज़। जो काम करने का है वो उसी रोज़ होता है। जो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आगे कर दें तो फिर दूसरा फरीक भी समझ जाता है। इस वक्त अगर ये उसी वक्त कर देते, उसी दिन जब उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म किया और इस पर ख़ात्मा होता, इधर परेशानी हुई होती हर तरफ कि ये क्या हो गया यकदम, तो वो उन्होंने एक लूज़ किया है अपॉर्चुनिटी। अब जहाँ तक नवाज शरीफ की आमद का बात है, मेरे ख्याल में वो नहीं आते, इलेक्शन हो या ना इलेक्शन, मेरा ख्याल है। उसकी वजह एक और है, जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनको आ गया है, वो आ गया है तस्नीम हैदर नामी एक आदमी है, उसने लंदन में बयान दे दिया और बयान मीडिया के सामने दिया है। बयान एक दस्तावेज है, वो दस्तावेज है, वो दस्तावेजी सबूत है। अब मैं उस बयान को एतमाद के काबिल नहीं मानता हूँ, बड़ी उसमें खामियां सी हैं। जून में सुना कि जी मंसूबा बनाया नवाज शरीफ ने बुला के उनको कि कत्ल करो इनको, इन दो अरशद सईद को और इमरान खान को, फिर सितंबर में किया, फिर अक्टूबर में किया। ये मतलब है खामोश बैठा रहा इसमें। इसने पुलिस को कहते हैं अब कि अक्टूबर के बाद उसने ये लंदन पुलिस को बताया। ये कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर है, इसको आसानी से लंदन की पुलिस नहीं ले सकती, कभी नहीं लेगी, इसके जड़ पे जाएगी। और अब वो जो तस्नीम हैदर है वो बयान दे चुका है मीडिया के सामने, ऑन रिकॉर्ड है, वो भी कितना पीछे जा सकता है वो भी बड़ा मुश्किल है। अब वो अगर कॉन्स्पिरेसी, अगर मैं तस्नीम हैदर को मोतबर नहीं समझता, पर अगर, और उसका जिस तरह बयान है, पर अगर ये आ चुका है रिकॉर्ड पे तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी। और अगर ये रिकॉर्ड पे आ चुका है कि कॉन्स्पिरेसी लंदन में हुई है और उसके बाद उसका जो उस पर अमल कीनिया में और वजीराबाद में हुआ है, तो फिर वजीराबाद में भी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ FIR हो सकती, कॉन्स्पिरेसी।
अब वो हो जाए तो बड़ा सीरियस मैटर है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे कॉन्स्पिरेसी का ये झूठा इल्ज़ाम लगाया था, ये भी झूठा होगा। पर एक बंदा मुझे नहीं समझ आता, 20 साल लंदन में रहता है, वो लंदन की इतनी दलेरी से वो बयान दे रहा है। और ये मियां नवाज के लिए सबसे बड़ी रुकावट अब ये केस है जो वज़ीराबाद में वाक़या हुआ है। ये अजीब बात है जो गवर्नमेंट कर रही है, जो ये कर रही है पुलिस। वक़्वा वज़ीराबाद में हुआ है, पर्चा इस्लामाबाद के थाने में हो रहा है, रमना थाने में। ये किस तरह वज़ीराबाद में है? ये फेडरल गवर्नमेंट किस तरह ले सकती है इसको? अच्छा, जो वज़ीराबाद में पर्चा हुआ है वहाँ पर्चा ही नहीं हुआ। पर्चा होना चाहिए किसी वारिस के या कोई वहाँ मौजूद पार्टी का। ये FIR अगर हर FIR पुलिस की मुद्दत में होना शुरू हो तो यहाँ डकैती होती है और पुलिस आ जाती है, वो अपनी मुद्दत में एक बयान लिख लेती है, यानी मुद्दई पुलिस होगी, यानी सेटलमेंट भी पुलिस कर सकती है। दूसरे दिन वो सेटल कर ले डाकुओं से। ये इख्तियार ही नहीं है सलूक पुलिस। पुलिस की मुद्दत में होते हैं जब कोई नामालूम लाश मिले, कोई इस किस्म का नामालूम। अच्छा इज़ाज़ साहब, ये बताइएगा, जनरल बाजवा जाते जाते ये भी कह गए कि जो 71 का सानिया था वो सियासी गलती थी, फौज का उसमें किरदार नहीं था। तो आप बतौर सियासतदान इसको कबूल करते हैं कि सियासत की ही वजह से, सियासतदानों की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ? भाई वहाँ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? फौजी थे। जनरल मोहम्मद आगा याया खान। और वहाँ जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो अदालतें लगी हुई थी मार्शल लॉ की, वो सारी फौज की थी। सियासतदानों पे आप द बक स्टॉप्स एट द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। सर एक बताइएगा, एक मिनट, मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, मैं कोई ट्वीट नहीं करता हूँ। ठीक है। मैं कोई ट्वीट नहीं करता हूँ, मैंने आज तक ट्वीट की नहीं है। सर के नाम से काफी आ रहे हैं। और मैंने एक ट्विटर अकाउंट अपना बनाया हुआ है, द रियल एतजाज। वो बेटे ने बना दिया कि आपका शनाख्त हो, मैंने कोई उससे भी ट्वीट नहीं की। तो ये ट्वीटिंग जो है ये सब गलत है।